حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی درگاہ شریف۔ لوگوں نے 2-3 سال پہلے کہا تھا کہ زہر ڈال دیا گیا ہے، یہ ہے وہ ہے وہ ہے، میں نے 1 لوٹا پانی منگوایا، میں نے پورا پیٹ بھر کے پیا۔ جو آپ ابھی آوازیں آپ یہ سن رہے ہیں، آج سے بھی اگر کوئی خلل ہے، کوئی جادو ٹونا سحر سفلی عملیات کے اثرات ہیں، اور خاص طور سے اگر آج سے بھی کوئی خلل ہے تو وہ لوگ اس دربار میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے ان کے وسیلے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کھیری.com اور میں ہوں غفران احمد۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی آمد کا سلسلہ ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور کے ظاہری وصال مبارک کے بعد آپ کے اصحاب، تابعین تبع تابعین اور اولیاء کرام نے رشد و ہدایت کی ذمہ داریوں کو نبھایا، رشد و ہدایت کے کام کیے۔ یہ اولیاء کرام ہی ہیں جن کی وجہ سے پوری دنیا میں آج امن و سکون ہے۔ اولیاء کرام اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہوتا ہے۔ ناظرین، آج جس مقام پر ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ کچھوچھا شریف ہے، اتر پردیش کا امبیڈکر نگر ضلع اور امبیڈکر نگر ضلع کا کچھوچھا شریف۔ اور کچھوچھا شریف خاص طور سے بہت ہی مشہور و معروف ہے پوری دنیا میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی سے۔ آج کھیری.com کی ٹیم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس مبارک اور مقدس آستانے پر حاضر ہوئی، اور ہم نے خاص طور سے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر حاضری دی، اور اس کے علاوہ کچھوچھا شریف کے اور کئی مقدس مقامات وہاں پر بھی ہماری حاضری ہوئی۔ ناظرین، ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ سمنانی لفظ آپ کے ساتھ میں وابستہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تعلق سمنان سے ہے، اور سمنان ایران کا ایک شہر، اور سمنان کی حکومت کی ذمہ داریاں آپ کے والد گرامی حضرت سید محمد ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس تھیں، یعنی وہ بادشاہ وقت تھے سمنان کے۔ آپ کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ وقت ہو اور اولاد نہ ہو تو یہ انہیں اور ان کی شریک حیات کو اس بات کا بہت زیادہ افسوس ہوتا تھا اور تکلیف رہتی تھی۔ وہ دعائیں بھی کرتے تھے اولاد کے لیے۔ ان کی حکومت میں ایک بزرگ سید ابراہیم مجذوب تھے، انہوں نے بھی بشارت دی، اور پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بشارت دی کہ تمہارے 2 بیٹے ہوں گے، اور ایک کا نام عارف رکھنا اور ایک کا نام اشرف رکھنا۔ اس کے بعد حضرت سید محمد اشرف سمنانی شاہ سمنا کی ولادت ہوئی۔ 1 سال میں آپ نے 7 قرأت کے ساتھ قرآن شریف کا حفظ کیا، اور 14 سال کی عمر شریف جب تھی تو تمام علوم میں دسترس حاصل کر لی۔ 15 سال کی جب ایج تھی آپ کی تو آپ کے والد گرامی جو بادشاہ وقت تھے حضرت سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال ہو گیا، تو بادشاہت کی ذمہ داری حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دی گئی۔ 10 سال تک آپ نے بادشاہت کی، لیکن دل دوسری طرف ہی مائل تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ کی راہ تو کوئی اور ہے۔ ترک سلطنت کر دیا، اور اس کے بعد آپ اللہ کی راہ میں نکل پڑے۔ والدہ نے بہت اس کو احتشام کے ساتھ آپ کو روانہ کیا فوج کے ساتھ، تمام جو خدمتگار تھے، لیکن کچھ دور جانے کے بعد آپ نے سب کو واپس کر دیا۔ سب سے پہلے آپ تمام علاقوں سے ہوتے ہوئے اوچ شریف پہنچے، اور وہاں جلال الدین جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے ملاقات ہوئی، اور پھر وہاں سے آپ
हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान आने के बाद फिर आप बिहार शरीफ और बिहार शरीफ से फिर आप बंगाल के लिए रवाना हुए। बंगाल में अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि आपके पीर व मुर्शिद हैं, वो आपका इंतज़ार कर रहे थे और वहीं से आपको सब कुछ मिलना भी था। जब वो पहुँचे तो आपने उनका पुरज़ोर इस्तकबाल किया और फिर खिलाफत व इजाज़त देकर और दीन के फ़रोग़ के लिए, इंसानियत की तालीमात के लिए आपको तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ दे दी। आज जो ये किछोछा शरीफ है, ये किछोछा शरीफ, इसकी निशानदही आपने फरमाई थी कि तुम्हें उस इलाक़े में जाना है और वहीं तुम्हें दीन का और इंसानियत का काम करना है। फिर आप यहाँ तशरीफ़ लाए, तमाम मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा और जादूगरों के सहर का भी सामना करना पड़ा, लेकिन आपने सभी को शिकस्त दी। यही किछोछा शरीफ की मुक़द्दस सरज़मीन, जिस सरज़मीन पर इस वक्त आज हम खड़े हुए हैं, 100 साल से ज़्यादा आपने उम्र पाई। तकरीबन 640 साल हो गए हैं आपके विसाल को। ये मान के चलिए कि आपकी विलादत 750 साल पहले हुई थी। विसाल की आपकी जो तारीख़ है वो 28 मुहर्रमुल हराम है। तो ये 640वां उर्स इस साल 2026 में मनाया गया। नाज़रीन, इस वक्त हम दरगाह शरीफ के कैंपस में मौजूद हैं, यानी हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह शरीफ। और दरगाह शरीफ का जो सबसे पहला गेट है, जो एंट्री का गेट है, वो इस्लामी दरवाज़ा कहलाता है। आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इस्लामी दरवाज़ा है और यहीं से दरगाह शरीफ में जाने के लिए, ज़ियारत करने के लिए जो भी ज़ायरीन आते हैं वो इधर से उनका दाखिला होता है। ये इस्लामी गेट के नाम से मौसूम है, जाना जाता है। तो अब हम लोग भी इंशाअल्लाह ताला इसी गेट से दाखिल होते हैं ज़ियारत के लिए। इस वक्त नाज़रीन आप जो देख रहे हैं, ये जो इस्लामी दरवाज़ा है, अभी जिस इस्लामी दरवाज़े से हम दाखिल हुए हैं दरगाह शरीफ में जाने के लिए, उसी इस्लामी दरवाज़े की ये तारीख़, क़िता तारीख़ दरवाज़े की है। और इस पर पर्शियन में यानी फ़ारसी में इस पर इसकी तारीख़ लिखी हुई है। नीचे सन 1300 हिजरी लिखा हुआ है। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं आस्ताना सिमना मस्जिद खानकाह शरीफ। ये पूरा इसका गेट है और शायद हो सकता है कि ऊपर मस्जिद भी होगी। नाज़रीन, बिल्कुल अनकरीब हम इस वक्त दरगाह शरीफ के पहुंच रहे हैं और जिस सड़क से गुज़र रहे हैं, कहा जाए कि थोड़ी सी तंग ये सड़क है और इस सड़क के दोनों साइड में, दोनों तरफ मुख्तलिफ़ सामानों की दुकान हैं। ज़ाहिर सी बात है कि ये वो मुबारक आस्ताना है, मुक़द्दस आस्ताना है कि मैं अगर ये कहूँ कि सिर्फ़ हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों से शाह सिमना की बारगाह में हाज़िरी के लिए अक़ीदतमंद आते हैं, तो इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा। तो अब देखिए कि ये एक गेट ये भी है और अभी 640वां उर्स मुबारक हुआ है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी शाह सिमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस साल जो 2026 में उर्स हुआ, 28 मुहर्रमुल हराम को आपका कुल शरीफ होता है। और अभी उर्स तो मुनक्किद हो चुका है, लेकिन ख़ासी भीड़ है, ज़ायरीन अभी आ रहे हैं। तो ये 640वां उर्स मुबारक था, जैसा कि इश्तिहारात पर भी देखने को मिल रहा है। अभी आप देखते चले आ रहे हैं कि जिन रास्तों से भी हम गुज़र रहे हैं, अक़ीदतमंद जो ज़ायरीन इकराम हैं, अक़ीदतमंद हैं, शाह सिमना से मोहब्बत करने वाले, वो आ रहे हैं और उनके आस्ताने की तरफ वो रवां और दवां हैं। हम भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आस्ताने आलिया तक पहुँचने की सआदत हासिल करेंगे।
नाजरीन, ये सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नसब शरीफ का यहाँ पर पूरा शिजरा दिया हुआ है। हुज़ूर गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत महबूब यज़दानी क़ुत्ब रब्बानी मीर उहुद्दीन हज़रत सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी नूरबख्शी सामानी क़ुद्स सिर्रहू, और उसके बाद में फिर आपके वालिद गिरामी हज़रत सुल्तान सैयद इब्राहीम सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर आपके दादा जान। इस तरह से आपका शिजरे मुबारक सरकार सैयदना हज़रत इमाम आली मकाम सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक जाकर मिलता है। बतूल पारसा हज़रत सैयदतना फ़ातिमतुज़ ज़हरा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ौजे बतूल हज़रत सैयदना मौलाना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल वासिलीन असदुल्लाहुल गालिब इमाम अली इब्ने अबी तालिब, यानी सरकार सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौला कायनात की आप औलाद हैं, नसब से हैं। और एक ये शिजरा मुबारक भी इधर ये दिया हुआ है, और जिसमें हुज़ूर गौसुल आलम महबूब यज़दानी तारिकुस सल्तनत सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये शिजरा मुबारक, और ये मुस्तफ़ा जान रहमत सरवर दुआलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से होता हुआ अमीरुल मोमिनीन सरकार सैयदना अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उसके बाद हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और फिर इस तरह से होता हुआ आखिर में हज़रत ख्वाजा शाह मौलाना हकीम सैयद अब्दुल हई अशरफ अशरफ़ी चिश्ती सज्जादा नशीन, इनके नाम इसमें दर्ज हैं। अब नाज़रीन, आप ये देखिए कि हुज़ूर मखदूम अशरफ सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़ा मुबारक मज़ार शरीफ की ज़ियारत करने के लिए जब आप रोज़ा मुबारक के अंदर दाखिल होंगे तो इसी गेट से जो ये बाबे फ़िरदौस है, आप देखिए उर्दू में ऊपर लिखा हुआ है बाबे फ़िरदौस। बाबे फ़िरदौस का माने ही होता है कि जन्नत का दरवाज़ा। तो ये बाबे फ़िरदौस से आप जब अंदर दाखिल होंगे, फिर उसके बाद में ये सामने एक दरवाज़ा है, और इसी दरवाज़े से जब आप अंदर जाएंगे तो सरकार हज़रत सैयद जहांगीर अशरफ सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मज़ार मुबारक की आपको ज़ियारत होगी। एक ये देखिए नाम लिखा हुआ है हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, और दूसरे साइड में जो लिखा है हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन। तो हम आपको ये बता दें कि हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शादी नहीं की थी, लेकिन ये जो अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, इन्हीं से सिलसिला अशरफ़ी शुरू होता है, और इनको आपने अपना रूहानी बेटा फरमाया था। और ये हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी खालाजाद बहन के साहबजादे थे, यानी रिश्ते में आपके ये भांजे थे, और इन्हीं को अपना रूहानी बेटा और उसके बाद अपना खलीफा बनाया था, और इन्हीं अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन रहमतुल्लाह ताला अलैह से ही फिर आपका पूरा सिलसिला आगे बढ़ा है। तो ये हमारी खुशनसीबी है कि आज हुज़ूर ने हम गुनहगारों को भी, अपने चाहने वाले जो हमारे और साथ में हमारे सब हज़रात हैं, इनको यहाँ पर हाज़िरी का शर्फ़ अता किया, और दुआ है कि बार बार इसी तरह से हम सब की हाज़िरी होती रहे। इंशाअल्लाह ताला इस कैंपस में और जितने भी मकामात हैं, मुक़द्दस मकामात हैं, कोशिश करेंगे कि हम आप तक वो मकामात, उनके मंज़र, बहुत खुशनुमा मंज़र, रूहानी मंज़र, रूह परवर मंज़र हम आपको पहुँचाएँ। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ठीक सामने रोज़ा मुबारक इधर है, और उसके बाद में ये औलिया मस्जिद है, और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसकी तामीर सैयद मखदूम अशरफ सिमनानी शाह सिमनान ने इसकी तामीर कराई थी, और आज भी ये मस्जिद यहाँ पर मौजूद है, और जो भी हज़रात आते हैं और जब नमाज का वक्त होता है तो नमाज भी इसमें अदा की जाती है। ये हुजरा है, और बल्कि कह लीजिए कि मुअज़्ज़िन यहाँ पर अज़ान देते हैं इसमें। ये मस्जिद वो मकामात हैं जिनको अल्लाह ताला का घर कहा जाता है, और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बस्तियों के सबसे बेहतरीन मकामात उनकी मसाजिद हैं। औलिया कराम का हमेशा ये दस्तूर रहा है कि जहाँ जहाँ भी उन्होंने अपना मस्कन बनाया है, जैसे शाह सिमनान बादशाह सिमना थे, और उसके बाद तारिकुस सल्तनत हुए, सल्तनत छोड़ दी, और फिर बहुक्म परवरदिगार
بحکم ایزدی انہوں نے ہندوستان کا قصد کیا، ہندوستان تشریف لائے۔ بہت سے ایسے ملک ہیں بہت کثرت کے ساتھ میں جن کا آپ نے دورہ کیا، سیر و سیاحت بھی کی، لیکن پھر سمنان سے تارک السلطنت ہونے کے بعد یہاں تشریف لائے۔ آپ کے لیے حکم جہاں تھا بنگال میں علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پیر و مرشد ہیں، اور جب آپ جا رہے تھے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں سب سے پہلی بار، یہ کہا جاتا ہے کہ 70 مرتبہ کم و بیش 70 مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام نے علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خبر دی تھی کہ آپ کا محبوب آ رہا ہے، اور بار بار آپ کے پیر و مرشد یہ کہتے تھے کہ محبوب کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب بہت قریب آپ پہنچ گئے تو علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود پیر و مرشد پالکی لے کر تشریف لائے، اور جیسے ہی دیکھا گلے سے لگایا، ماتھے کو بوسہ دیا اور پالکی میں بٹھا کر لائے، اور اس کے بعد میں پھر اجازت و خلافت آپ کو دی۔ یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں، موقع خاص ہے کہ 2 تارک السلطنت اولیاء کرام ہوئے ہیں جو بادشاہ وقت تھے۔ ایک حضرت ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شخصیت ہے جو بادشاہ وقت تھے، اس کے بعد انہوں نے بادشاہت کو ترک کر دیا تھا اور پھر وہ اس راہ کے مسافر ہو گئے تھے۔ اور دوسرے بادشاہ سمنا، شاہ سمنا حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ترک سلطنت کیا اور اس کے بعد میں اس راہ کو اختیار کیا۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد حضرت سید اخی سراج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت اخی سراج رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد سلطان الہند فخر ہند سرکار خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ سلسلہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ملتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید اور ہم اس پر روشنی ڈالیں گے، لیکن کسی دوسرے مقدس مقامات پر حاضر ہو کر۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک تالاب ہے، اور یہ جو حضور کا روضہ مبارک ہے یہ 3 طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہے، بلکہ چاروں طرف سے، ایک طرف سے ایک راستہ ہے بس آنے جانے کے لیے، تو چاروں طرف کہہ لیجئے، اچھا اندر ہے۔ تو اسی مقام کی نشاندہی فرمائی تھی حضرت علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پیر و مرشد نے، جب آپ کو خلافت و اجازت سے نواز کر بھیجا تھا کہ جائیے اور اب دین کی تبلیغ کیجیے، اور اسی مقام کی نشاندہی فرمائی تھی۔ بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، نہ جانے کتنے جادوگروں کا سامنا کرنا پڑا تھا، کون سے حربے اغیار نے نہیں آپ پر استعمال کیے تھے، لیکن وہ تو اللہ کے محبوب بندے بہرحال سبھی کے حربوں کو ناکام کیا، اور اس کے بعد یہاں پر تشریف لائے۔ تاریخ کی کتابوں میں، اتہاس کی کتابوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو یہ تالاب ہے نیر شریف کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ نیر شریف کے نام سے، اور اس کی کھدائی بھی سرکار مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کروائی تھی، اور اس میں آب زمزم ڈلوایا تھا۔ اس کے علاوہ جب کھدائی کر رہے تھے، جو بھی ان کے مریدین تھے وہ کھدائی کر رہے تھے تو قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے، تو اس طرح سے پھر آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں ہی اس میں شفا کی ایسی تاثیر پیدا ہوئی کہ وہ لا علاج امراض جن کا کوئی علاج نہیں ہو پاتا ہے، ڈاکٹر جن کو لا علاج قرار دے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ ابھی آوازیں آپ یہ سن رہے ہیں، آسیبی اگر کوئی خلل ہے، کوئی جادو ٹونا سحر سفلی عملیات کے اثرات ہیں، اور خاص طور سے اگر آسیبی کوئی خلل ہے تو وہ لوگ اس دربار میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے ان کے وسیلے سے، اور اس پانی میں غسل کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ہماری مانیتائیں ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ کے ایک ولی کے دست مبارک سے یہ تالاب کھدوایا گیا تھا، تو اس پانی میں جو بھی نہاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ اذان ہو رہی ہے اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں۔ ناظرین، ابھی ہم نے سرکار سید مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عظمت میں ہم نے حاضری کا شرف حاصل کیا۔ بالکل قریب میں ہی یہ مسجد طاق پریاں، اسی مسجد میں عصر کی نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت اس مسجد کے پیش امام ہیں، اور ابھی حضرت سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ حضور پہلے تو اس میں گرامی بتا دیں، پورا تعارف دے دیں۔ اس مسجد کو لوگ کہتے ہیں مولانا عنبر فیض۔
अभी आप लोगों ने नमाज़ें अदा की है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की नमाज़ें को अपने हबीब के वसीले। अब नीर शरीफ के ताल्लुक से मैं आपको बता दूँ, सरकार गौसुल आलम महबूब यज़दानी जब आप हज के लिए गए तो आपके साथ फुकरा गए। एक किताबों में आता है 540, एक किताबों में आता है गालिबन 5 से कुछ ज़्यादा, ठीक है ना। सारे लोग गए और सरकार मखदूम पाक ने मस्कीज़े में आब जमजम के पानी को सारे फुकराओं को देकर कहा तुम लोग सर पर उसको रखो। अब मस्कीज़ा लेके आए, मखदूम सिमना खड़े होकर तमाम फुकराओं को कहा कि नीर शरीफ की खुदाई करो। तो फड़वे चलते थे, फड़वे से खुदाई हो रही थी। और ऐसा नहीं है सब बावजूद, और हर फड़वे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़र्ब। इधर खुदाई हो रही है, उधर गौसुल आलम महबूब यज़दानी हम गुलामों के लिए कितना अच्छा टॉनिक तैयार कर रहे हैं। देखिएगा, सुभान अल्लाह बोलिएगा। आपने किसी डॉक्टर का टॉनिक आपने इतना हरा नहीं देखा होगा, लेकिन मेरे मखदूम ने फरमाया मेरे यहाँ का टॉनिक गुंबद खदरा का रंग होगा। या कैसा होगा? आज भी मैं बता रहा हूँ, कैंसर का मर्ज हो, ट्यूमर का मर्ज हो, किसी भी मर्ज हो, कसम खुदा की अकीदत से उस पानी को इस्तेमाल कर लिए। अल्लाह मखदूम के जो जुमले निकले थे आज भी सुबह क़यामत तक पूरे हो रहे हैं। मेरे मखदूम हाथ उठाए हुए थे और फरमाते हैं अल्लाह ये अशरफ खुदाई करवा रहा है, आने वाली मखलूक करीब जिस मर्ज में मुब्तला होकर आए, ए अल्लाह तमाम को इस नीर शरीफ के पानी से शिफा अता फरमा। आज भी देख लीजिए, आपको ज़ाहिरी ऊपर से आया कि ऐसा है वैसा है। लोगों ने 2-3 साल पहले कहा था कि जहर डाल दिया गया है, ये है वो है वो है। मैं तो अपने यकीन के साथ कहा जहर डाला गया है, लेके आओ। मैंने 1 लोटा पानी मंगवाया, मैंने पूरा पेट भर के पिया। तो लोग मेरा मुंह देखने लगे। हम बोले जहाँ पर जहर को काटा जाता है यहाँ जहर असर करता नहीं है, यहाँ जादू को काटा जाता है यहाँ जादू असर करता नहीं है, यहाँ शैतान की पूरी जिंदगी को तबाह किया जाता है, यहाँ शैतान को पनपने का मौका नहीं दिया जाता है। नाजरीन, मैंने जैसा कि शुरू में कहा था कि ये इतना अजीम आस्ताना है कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक से जहाँ जहाँ भी आपके चाहने वाले हैं, अक़ीदतमंद हैं, वो ज़रूर कभी ना कभी आते रहते हैं। साल में आते हैं और उसके मौके पर आते हैं, वैसे भी आते रहते हैं। शेख सलमान साहब छत्तीसगढ़ से तशरीफ़ लाए, हाजिर हुए इस बारगाह में। सलमान साहब पहली बार तशरीफ़ लाए हैं या इससे पहले भी आ चुके हैं? 2 बार आ चुका हूँ। 2 बार आ चुके हैं। पहली बार कब आए थे? ये करीब 2 साल पहले आया 2 था। साल पहले आए थे। तो क्या कुछ तमन्नाएं, मुरादें, हाजतें लेकर आए थे? क्या इरादे लेकर आए थे? जब पहली बार आया था तो अचानक से आना हुआ था। जी। उसके बाद से फिर बाबा का करम है, मखदूम पाक का करम है कि मुझे बुला लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे हज़रत के लिए? हजरत के लिए क्या कहें, उनके तो इतने कारनामे और वो हैं, क्या ही बताएंगे। जी। बस यही है, जो है दिली तमन्ना है वो पूरी होती है। आते हैं, सुकून मिलता है। जी। रूहानियत ज़ाहिर सी बात है कि औलिया कराम के जो मज़ारात हैं, आस्थाने हैं, दरगाहें हैं, वहाँ पहुँचने के बाद सुकून ही सुकून मिलता है, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की राह में वक्फ़ कर दी। इनकी ज़िंदगी का एक एक मुक़द्दस लम्हा अल्लाह की राह में, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के लिए गुज़रा है। तो आज भी इनके जो दर हैं वो फैज़ के लिए खुले हुए हैं। फैज़ आम आज भी जारी व सारी है। जब तक ये ज़मीन पर रहते हैं तब तक जारी रहता है, और जब ये ज़मीन में जाते हैं, हमारी नज़रों से पोशीदा हो जाते हैं, तो शायद और ज़्यादा ही फैज़ान करम जारी होता है। असगर साहब महाराजगंज गोरखपुर से आए हैं। पहली बार आए हैं? जी पहली बार आए हैं। क्या सुनकर आए थे? अरे बहुत कुछ सुनकर आए थे। किसने बताया कि यहाँ जाना है और कैसे हैं ये बुजुर्ग? अरे बताने वाले तो बहुत बता रहे थे, लेकिन जब हम यहाँ आके देखे तब हमको पता चला कि ये क्या चीज़ है, क्या हस्ती हैं। बेशक बेशक बेशक। जो हम दिल में लेके आए थे उससे भी ज़्यादा हमको मिला। बेशक बेशक बेशक। आप भैया कहाँ से हैं? बोलेंगे कुछ भाई? कहाँ से हैं आप? गाजीपुर जिले से। गाज़ीपुर से हैं। क्या शुभ नाम क्या है? मेरा नाम पंकज कुमार चौरसिया है। पंकज कुमार चौरसिया साहब गाज़ीपुर से आए हैं। और ये सूफिया कराम के जो आस्थाने हैं, औलिया कराम के आस्थाने हैं, ये गंगा जमनी तहज़ीब के मरकज़ हुआ करते हैं, केंद्र हुआ करते हैं। यहाँ पर कोई भी आए, जो भी आए, सच्चे दिल से आए तो फिर उसकी मुरादें ज़रूर पूरी होती हैं। यहाँ पर कोई मज़हब व मिल्लत की बात नहीं होती है, कोई क़ैद नहीं होती है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इस तरह की कोई बात नहीं होती है। तो चौरसिया साहब भी आए हैं। पहली बार आए हैं क्या भैया? पहली बार आए हैं। पहली बार आए जी। हैं। क्या सुनकर आए थे? किसने बताया कि वहाँ जाइए? जी, हमारे मोहल्ले में बहुत लोग यहाँ आते रहते हैं, तो उन्हीं के माध्यम से कोई ख़ास मकसद लेकर आए हैं? कोई हमारी मम्मी परेशान रहती है, हमारी मम्मी है। अच्छा अच्छा। जी। तो हाज़िरी हो गई, अर्ज़ी लगाई? जी, अर्जी लगा दी है, हाजिरी मम्मी लेती है। अच्छा जी। तो क्या दिल कहता है कि जो अर्ज़ी लगाई है पूरी होगी? अरे पूरे तन मन से आए हैं तो क्यों ना होगी। जी।
इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये पहली बार हमारा भी आना हुआ है कि चौसा शरीफ में। बहुत दिनों से आने की तमन्ना थी, ख्वाहिश थी, लेकिन कल हम लोग अपने वतन से यानी लखीमपुर खीरी से हम लोग रवाना हुए और आज हम यहाँ सुबह पहुँचे और हमारी हाज़िरी हुई। बहुत से मकामात हैं जिनके बारे में अलग अलग वीडियो हैं, आप तक पहुँचेंगे और हमें उम्मीद है कि जो कुछ भी हमने आपको ज़ियारत कराई, जो कुछ भी बताया, आप उसे पसंद ज़रूर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और खीरी.com चैनल हमारा, उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा और हमारे तमाम साथियों को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रगुज़ार हैं वीडियो देखने के लिए। अल्लाह ताला हम सब का हाफिज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।